وہ بولن میں تو کنی میں کوئی کمی کوانی مگر ساتھ صاحب رو کہڑو ہے فتنی کے ہو تو وطن جن وساریو جیڑی تیڑی اپنے وطن نہیں بھاسا ہے تو وہ منا مول صاحب بولن میں منا حکم کریو ہے بھی تو بولی منا اپنے تو تڑاکڑی بھاسا ہے منا تو اسٹیج اور علماء اکرام نے محفل ہے اور بیان بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے یہ منا تو تڑاکڑی بھاسا ہے کسی بھی معاف تے تو رب گیا ہے توبہ کرا تو ہوا گیا ہے معافی گھرا تو بھی کہیں نہ جے کنو بچڑو جے کہیں جے تو معاف کرے آپ رو سمجھے انشاءاللہ بے شک وہ محفل با برکت ہے یہ محفل میں نہ آؤں بیسن سنن سنبھڑن ثواب یہ چیز رو جائے باقی لنگر کھاؤنا نہ غوث اعظم آپ جو لت سے رہا علماء اکرام نے محفل ہے مولوی علی سن سو ہمارا سنا سی کہ غوث اعظم اور فرمان ہے وہ ماں جی زمین مت جتنی بھی انسان کائنات شہر آباد ہے وہ نہیں دیکھا تو جی رائی رو ڈانو تو پوری دنیا نہ رائی نے ڈانے گار دیکھے تو یہ محفل میں نہ چاول کھائے جو کو ٹھکر دے مچانا وٹ دے انگوں نہ کٹا معاف کسے سوال ہے انہوں نے لنگر شریف ہے محشر میدان میں نہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیٹوڑا سے پاسے میں نہ فرشتہ موجودہ میں کٹے کٹے لائے غوث اعظم رضی دربار میں حاضر کر چنگے وہ سگوری جماعت ہے جو کو تاج لنگر شریف میں آئی تھی کھائیں مچھانا وقت دے روانہ تھے گیا بیان تاج و بو پہ غوث اعظم یہ سنی تھا کنی جو کو اوی کاس ہو یہ سزا دے سا لیکن کوئی جگہ آنجی سجاری آئی تو کوئی چھڑا نہ کوئی جگہ نکو کلیکٹر اللہ بھیڑو نکو جلہ کلیکٹر اللہ نکو روپیہ رشوت فرشتہ لیں نکو کئی را تنی نکو کئی را گنا دے نکو کئی رو کئیو منی جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جی سے اے محفل ہے یہ محفل میں نا وڈا وڈا چور آتا ہو شاہکار تھے نگری آئیں محفل میں نا آئے بیسے تو جو یہ محفل مرتبوں کی دو ہے ایک چور غوث اعظم رضی دربار میں نا آئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے سائیں ہوں آوانجو مرید پڑھانا چاہوں دو سائیں آوانجو ہوں مرید پڑھانا چاہوں دو نہ مرید کرو میم نہ بھی آتا ہی چھٹیں گو نہیں تو سائیں فرمائیو کا کی یہ تاج عادت ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہیں دے کہ ماں جی بھی ہے غلطی کہ ایک تو ہوں چوری چھڑا گو نہیں بیچو میں نے نماز رو قیامت نہیں بیچو وہاں مرجی پہ سرطان رکھیا تو میں نے منظور ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وڈی سرطان ہے یہ تو ایک تو چور مسجد نے مانگ رو نکلو تو چپل چھڑیں گو نہیں وہ جارت کرنا ہے وہ چپل چھڑیں گو نہیں نماز پڑھتے رہا تو نماز پڑھ سے لہرا تو چوری کری سے وڈی چوری تا جو نہیں کنا مرید کرنا کوئی تا لوگ کچھ تو تا جو دندو کر جائے تو وہ بار بار التجا کری کہ منا مرید کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وڈا وڈا چور آتا جو کو تا جو جبو مبارک چورن آیا رہا انوانا تے ولی کرے چڑیا ہوں کارو تٹوڑو تاجی دربار میں آئے وہاں ایک نے آواز ہاتھ اللہ ری بارگاہ موٹیا تو اللہ تعالیٰ منا چوری منا بیجی منا نجات لے سے ماں جواز سے دوارا ہاتھ کھڑو تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امنا تاج واسطے کوئی جاگہ گوانی آخر میں نہ چور کیوں غوث اعظم تنا تاج نام حبیب قریب رو وسیلو ہے تاج امام الخیر فاطمہ رو وسیلو منا مرید کرتا کہ اللہ تعالیٰ منا چھٹکا رو دے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مرید بڑھائے لیکن شرط رکھی یہ شرط ہے نماز رو ٹیم دے ویڈیم تنا بانگ دینی باز ہے ہزارے کم چھڑے چاہے جوڑو کم ہوئے رو ہزارے کم چھڑے نماز رو جکا ٹیم نماز رو ٹیم تھے مولوی مسجد میں نہ اللہ اکبر کہے وہ ٹیم تو جیڑی حالت میں نہ ہوئی ہاتھ پاک دھوئے مطلب مسو کریں تیار دے جا کنا وانگلے کہ اللہ اکبر چالو دے جا جتھے بھی ٹوڑو ہوئے تو وہ سائیں یہ کوئی وڈی شرط ہے اے منا منظور ہے بانگ ہوں نہیں باقی نماز ہوں کو پڑھانی چوری کو چھڑانی سائیں کو اتنا جھوٹ ہے جا محفل کی بات کرا تو میں نے ٹیم کو صرف 10 منٹ روز ٹیم ہے بے شک باہر چور کیوں گھرے کیوں 3-4 دے بیٹھو بھاگا ہمارے گھرے بیٹھ رہا تھا رات پیجی بس ساجر ٹیم سومان ٹیم اکی اس باتاں نے جکا نے بانگ مسجد مولی بانگ دے دو کنا وانگنے گھرے تائر دے جاؤ لکائی کہ نہیں ماں ہوں تو مس کرے تساڑی رو جمانو دو
मस करे नीचे भेरी में पानी लाए रखन तू फट ने उठी उठो नुको तो नमाज पढ़े बांगा दी घरे बैठो का तो मसीह ते बांग दी मारी जिन छुटे ई तो काली इतना पतो के हूं बड़े पीर वाजो करी आयो बांग तो छड़नी को है लेकिन ये पतो को नहीं रुकी बांग को ये बांग इतना क्या झलाई वो सदके में इतना की मिलसी वाह वाह 4 5 7 ने घरे लगातार भागा ने लुगाई की नहीं ढूंढता था मां मेरा बाल भुगता पड़ी कोई टेम बता जी के बांग मैंने घणेरी छेटी हुआ था कि वो खड़े घरे पुजा तो लुगाई को वहां 100 पानी में लगाया सुबह ताने तक टेम घड़े पे रात ठंडी है किते जाके के रजाए हणिया दाड़ो हणिया ने भूख मरे जासा तो चोर हुआ भी निकलो असली बात को गौर से सुनिया बेशक वाह उबा में ना निकलो एक वडेरे घरे जाए पुको जो तो वडा दरवाजा बड़ा का लंडूड़ी लाके ना हुआ फाई खादे ने कोनी मौको मिलो जरा को चाड़ी को टींगर आडो में लकड़ दे चढ़ियो मैं ना पड़ियो बड़े महीनो जो ऊपर घर में ना जेवरा की कमी हती कोनी खणी थे जोई थे रखी थे नहीं कर जो सुबह तन टेप चनो जो तो भारी करे बाहर निकलो मौलवी कला गंगे कहते अल्लाह अकबर ये क्यों घोड़ा घर ना घोड़ा आया नहीं ये मतलब बांग दिन जरूरी है गौसे आजम में आए तो जरा गटड़ी रखता है पासे में कहते बांग दे तो सिर के निकल जाए ये तो बांग शुरू करना है घर अधली पासे में उठा उठिया रहूं जा कहते हैं कोई खुदा रो भेजो रो मकबूल बंदो आपने खड़ी है जब बांग नहीं आए ये हमारा डिठी ने कहते वो जो कुल मसो करी भाई मसो करने लगाएंगे कि हूँ कूड़ मिस करा मेरा कादा नियत करे नमाज पढ़े निकले जाऊं अच्छा नमाज ने भी रखा तो नियत करे नमाज चालू करना नारा जो तो पूरी जमात पीटी जमात सिर्फ पढ़ाए ये सलाम बड़ा हुआ कि साईं हमें सुन्नत पढ़ी है तो हमें फर्ज पढ़ा सुन्नत भी रखा था नहीं फर्ज नहीं फजर ने अगर बे रखा तो सुन्नत वो पढ़े हुए तो हमें मेहरबानी करे कि फर्ज पढ़ाओ ये केरी फर्ज बिना तो मरना चलिए वो तो क्यों हो रहा तो चोर है तो भला चोर है लेकिन असीत ना चोर करे मना को होता नहीं तू ताजी विलायत में कर तो लेना चाहिए वाह 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 असा ना पतो दिवे तो ना खुदा पाक भेजू है तू वली की अलावा जी कम फर्क को नहीं मेहरबानी करे नमाज पढ़ा बगदाद रे से हुई जगह डिठी ने मुस्कुराया सुभान अल्लाह बगदाद में मुस्कुराया खलीफा मुरीद बड़ा पासे में साईं मुस्कुराहट केड़ी तो साईं फरमायो जो को हमरा की जगह बांग और वाए तो करेगे तो फसियो नमाज पढ़ा को ने चोरी करी वो आज जाए घाटो बीड़ा और आज जाए हाथी का झलियो ही ना हमें रिट कंटा में फंसी है निकलना जी है तो अक में ना फिटो नमाज में चोर की नमाज पढ़ा है लेकिन वो जमाना ना चोर भी आलिम हुदा पढ़िया लिखा हुआ अपन यार को मुंबई में को चोर दे दानी थोड़ी घड़ी किते महफिल या मदरसो मस्जिद सुनता को जगह जाए हदीस सिखिया था या कुरान सिखिया था पाड़वा में शौक हो तो बोलता बेशक कोसो दूर पाला जाए सिखिया था हमें तो घर रह गया मदरसो पे पढ़ाऊं अपने वसरी बात को नहीं बच्चों जगह मदरसे मेरे तो मोबाइल भेड़ो अप्पो भेड़ो अम्मा भेड़ो मौलवी ने साइन कर देना जगह मां ने रातरो लगाए मेंबर मारू हुए तो नमाज वे चालू करे हमें कहते नमाज पढ़ाए छूट को है नहीं पढ़ाई तो जमात बैठी है मोटड़ा माली खे करे बैठी घर से तो फर्ज नमाज पढ़ाए तो कुछ गौसे आजम द्वारा वासात करना कि या अल्लाह इतना दिन बांग नारा दौड़तो चोरी करतो फतक तो हमें या अल्लाह इतनी तक लाउणो मां जो कम तो ये मागो सवालन दा जो कम है बस सुभान अल्लाह तो वक्त रफ्तार पड़ो तो ये महफिल रो सदको है ये पीरन पीर दस्तगीर रजी अल्लाह ताला नजर रो कमाल है बेशक अल्लाह ताला अली बारगाह में ना दुआ है जेके मी मिस्किन में ना गलत बोलानो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए आमीन आमीन कच्ची भाषा है तो वक्त में ना दिनो तो मा तौफीक इल्ला बिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ये अपने हाटी ज़बान में बरादरम मौलाना मोहम्मद हमजा साहब कादरी अनवारी ने आप हजरात को बहुत ही बेहतरीन पैगाम दिया कि आज के दौर में इस वक्त में हम पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र से कहीं पोशीदा छुपे हुए नहीं है बल्कि बगदाद में बैठ कर के तमाम वलियों का सरदार हमें देख रहा है कि मेरा मुरीद क्या कर रहा है और मुरीद इधर उधर घूम रहा है फिर रहा है मिंबर नूर पे उलमाए किराम हैं सादात ज़वील एहतराम हैं उलमाए किराम और सादात
ज़वील एहतराम के मुक़द्दस और नूरानी चेहरे को देखना मेरे प्यारे हबीब की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम दीन के चेहरों को देखा उसने किसी आलिम के चेहरे को नहीं बल्कि मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार किया। इससे बढ़कर के और क्या खुश नसीबी हो सकती है हमारी और आपकी कि ये महफिलें, ये जलसे और ये जुलूस, ये उलमा और ये सादात के चेहरों का दीदार, और फिर हम अपने दामन को गुनाहों से पाक न करें। ये हमारी और आपकी कमजोरी है। या अल्लाह वालों का जो फैजान है, आज कादरी फैजान बगदाद का ये बादल बरसने वाला है, और जब ये आसमान की बारिश होती है तो जमीन को सरसब्ज शादाब कर देती है, पूरे कचरे करकट को लेकर के दूर ले जाती है। तो जब ये बगदाद का कादरी बादल बरसेगा तो कहीं और नहीं बल्कि बंदे मोमिन के दिल पे बरसेगा, तो इंशाअल्लाह हमारा दिल गुनाहों से पाक और साफ हो जाएगा। अल्लाह हमें नमाज की तौफीक अता फरमाएगा, माँ बाप के अदब और एहतराम की तौफीक अता फरमाएगा। तो आप हज़रात दिल जमाई के साथ में तशरीफ रखिए माशाअल्लाह हमारे मिंबर नूर पे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई किसी बाहर के को बुलाना ये नहीं बल्कि अपनों की कदर करना सीखो कि अपना क्या है। जहां पराए हमें छोड़ देते हैं तो वहां काम अपना आता है। तो इसलिए हमारे मुर्शिद बहक सैयदी नूरुल्लाह शाह बुखारी ने और हमारी इंतजामिया कमेटी ने यही तय किया कि अपनों को बुलाया जाए और लोगों के सामने पेश किया जाए। लोग समझते हैं कि इल्म वहां पढ़ा है। मैं हमेशा मौलाना मेरे अजीज शामिर साहब हैं, मौलाना खमीसा साहब हैं, मौलाना पठान साहब हैं और काफी उलमाए किराम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बाहर से जो आते हैं अगर छोटा कहीं कुरान पढ़ा लिखा होता है तो कहते हैं साहब ये कारी कुरान है, और अगर थोड़ा वोड़ा पढ़ लिया कि साहब ये बहुत बेहतरीन आलिम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस रेत के धोरे में बाड़मेर और जैसलमेर में ऐसे ऐसे आलिम बैठे हैं, क्योंकि हमारा जो तरीका बुजुर्गान दीन का है वही सादगी है, वही लिबास है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि ये तो कोई आम इंसान होगा, मगर ये नहीं कि ये कोई छुपा हुआ रुस्तम है। ये वो हीरा है जिस पूरे इलाके से अपनी रोशनी को मुनव्वर कर देगा। माशाअल्लाह हमारे इस मिंबर नूर पे हमारे जैसलमेर के उलमाए किराम को हमने मदऊ किया है, जो आप हज़रात के सामने अपना बेहतरीन खिताब और बयान हमें और आपको सुना करके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और उनकी मोहब्बत और बगदाद वाले आका की जो उल्फत है उसका जाम पिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खमीसा साहब माशाअल्लाह, जिन्होंने नीबा के अंदर बहुत ही बेहतरीन पहले दीन इस्लाम की खिदमत की, और आज नीबा की सरजमीन पर जो इल्म की शुआएं नजर आ रही हैं और वो मस्जिद जिसके मनारे आसमान से बातें कर रहे हैं, वो इसी बंदे की मेहनतों और कोशिशों और काविशों का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से अब ये राणा फकीर की दरगाह के पास में इन्होंने मदरसा सिबगतुल इरफान लिल बनात यानी बच्चियों के लिए मदरसा कायम किया। झाबरा के अंदर